آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 22 اپریل 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ جنازے میں گھسی اسرائیلی فوج کو فلسطینیوں نے بھگا بھگا کر کھدیڑا، پتھروں کے آگے دم دبا کر بھاگے بندوق تھامے فوجی۔ مسجد الاقصی میں سیٹلرز کا ہنگامہ، میموریل ڈے پر زبردستی احاطے میں گھسے یہودی۔ سیریائی زمین پر اسرائیلی قبضہ بڑھا، IDF کے بعد اب انتہا پسند سیٹلرز نے پار کی سرحد۔ حزب اللہ کا اسرائیلی ٹھکانے پر ڈرون حملہ، سیز فائر بڑھانے کے لیے لبنانی سرکار لگا رہی دوڑ۔ امریکی اڈوں پر بڑے حملے کی دھمکی، ایران کی 2 ٹوک وارننگ، کہا امریکی ٹھکانے ہوں گے مٹی میں دفن، پھر شروع ہو سکتی ہے جنگ۔ سبھی عرب ملکوں کا کام ہو سکتا ہے ٹھپ، ایران نے دی ہرمز میں سمندر کے نیچے بچھے کیبلز کاٹنے کی دھمکی۔ ایرانی ڈرونز کی مار سے گھبرائے امریکہ نے لیا یوکرین کا سہارا، یوکرینی ٹیمیں دے رہی امریکی فوجیوں کو خاص ٹریننگ۔ ایران کی زد میں اب قطر کے تیل کنویں، ایرانی میسائل پر راس آئل فیلڈ کی تصویروں سے مچا ہڑکمب۔ چائنا امریکہ میں زبردست ٹھن گئی، پکڑے گئے جہاز پر گفٹ اور میسائل کیمیکل کے دعووں پر چین نے دیا سخت جواب۔ یوکرین میں روس نے مچایا کوہرام، تاوڑ توڑ حملوں میں ایک ہی دن میں 1100 سے زیادہ یوکرینی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ امریکہ کے جارجیا میں بھینکر سوکھا، بے قابو ہوئی جنگل کی آگ، 1600 ایکڑ زمین جل کر راکھ، ہزاروں لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور۔ اور سعودی ترکی ریل لنک پر تیزی سے چل رہا کام، جارڈن اور سیریا کے راستے بچھے گی ریل لائن، جنگ کے ماحول کے بیچ ایک بڑے ٹریڈ کوریڈور کی تیاری۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز بھاری تھی، خبریں ان سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ ایک شو 3 گھنٹے میں بنتا ہے، 15 منٹ تک اسے لگ کر دیکھ لیجیے۔ جلدی جلدی خبریں نہیں، ریلز بنتی ہیں۔ پہلی خبر، جنازے میں پہنچی اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں نے حملہ کر دیا، جس کے بعد دم دبا کر اسرائیلی فوجیوں کو بھاگنا پڑا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے گولی نہیں چلائی۔ فلسطینیوں کا صبر اب جواب دینے لگا ہے، اور ویسٹ بینک کے المغیر گاؤں سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ زائنی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی ہیں۔ سنیے پوری خبر جو بتاتی ہے کہ رام اللہ کے پاس المغیر گاؤں میں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہو گئے جب فلسطینی عوام ان 2 اپنوں کا جنازہ پڑھ رہی تھی، 2 لوگوں کا جنازہ پڑھ رہی تھی جنہیں کل 21 اپریل کو دہشت گرد اسرائیلی سیٹلرز نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ اس غمگین ماحول کے بیچ جب اسرائیلی فوج نے گاؤں میں گھسنے اور اپنی دھوس دکھانے کی کوشش کی تو نہتے فلسطینیوں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ کوئی کب تک صبر کرے، کوئی کب تک ظلم جھیلے؟ فلسطینی نوجوانوں نے زائنی فوجیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حالانکہ یہ بارش ان کی جان بھی لے سکتی تھی، کیونکہ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ یہ خطرناک کھیل تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر وقت ہتھیاروں سے لیس رہنے والے یہ فوجی فلسطینیوں کے اس زبردست جواب کو جھیل نہیں پائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیوز میں صاف دکھ رہا ہے کہ فلسطینی عوام کے سامنے ان اسرائیلی فوجیوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اپنی گاڑیاں لے کر موقع سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ اب ویسٹ بینک کے لوگ صرف ظلم سہنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اپنوں کو کھونے کا دکھ اور اسرائیلی ظلم کے خلاف یہ پلٹوار ظاہر کرتا ہے کہ اب وہاں کی عوام کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس حملے کے بعد پورے علاقے میں تناؤ اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ فلسطینی اب اپنی زمین کی حفاظت کے لیے خود میدان میں اتر آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یروشلم یعنی آکوپائڈ جیروسلم سے ایک بہت افسوسناک اور اکسانے والی خبر سامنے آئی ہے۔ سو کالڈ تتھا کتھت میموریل ڈے کی آڑ میں اسرائیلی سیٹلرز کے بڑے جتھوں نے اسلام کے تیسرے سب سے مقدس مقام مسجد الاقصی کے احاطے میں زبردستی گھسپیٹ کی، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ ان سیٹلرز نے 22 اپریل کو مسجد کے صحن میں اپنی مذہبی رسمیں بھی ادا کی۔ حیرانی اور غصے کی بات یہ ہے کہ اس دوران اسرائیلی فوج کے وردی والے جوان بھی ان سیٹلرز کے ساتھ موجود تھے۔ مسجد کی پاکیزگی اور اس کے احترام کو طاق پر رکھ کر یہ سیٹلرز اور فوجی وہاں ناچتے اور گاتے ہوئے نظر آئے۔ اس پورے واقعے کو مسلمانوں کو بھڑکانے اور مقدس جگہ کی توہین کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مسجد الاقصی کے احاطے کے اندر، پریمائسز کے اندر زائنی فوجیوں کی سرپرستی میں جس طرح کا ہنگامہ اور ناچ گانا کیا گیا، اس سے فلسطینی عوام اور عالم اسلام میں زبردست غصہ ہے۔ سیٹلرز کی ہمت بڑھ گئی ہے، اب وہ سیریا کی زمین میں گھسنے لگے ہیں۔ ماؤنٹ ہرمن کے پاس انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ بھی کر لیا۔
मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच एक और बहुत बड़ी ख़तरनाक खबर सामने आई है। इसराइली सेटलर्स के एक बड़े ग्रुप ने तमाम ग्लोबल कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सीरियाई सरहद को पार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को पायनियर्स ऑफ बाशान नाम की एज यहूदियों की सेटलर्स की तंजीम से जुड़े दर्जनों सेटलर्स सीरियाई इलाके में दाखिल हो गए। ये सेटलर्स माउंट हरमन की पहाड़ियों के पास मौजूद सीरियाई गांव खद्र के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए और वहां एक इमारत की छत पर चढ़कर जम गए। सीरिया की आज़ादी और उसकी सरहदों का ये सीधा वायलेशन ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरा इलाका पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इन सेटलर्स की इस हरकत को बड़े उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि माउंट हरमन का ये इलाका स्ट्रेटजिक लिहाज से बेहद अहम है। लोग पूछ रहे हैं, अशरा की फौज कहाँ है? लेबनान के मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में मौजूद इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। जी, ये शाम में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने टायर शहर के साउथ में रास अल बायदा इलाके में मौजूद इसराइली आर्टिलरी साइट को निशाना बनाया है, जहां इसराइल की फौज की तोपें लगी हुई थी। वहां पर तंजीम के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइली फौज की तरफ से बार बार किए जा रहे सीज फायर वायलेशन के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा है कि उसने इस ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इस हमले के बाद सरहद पर टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आसार हैं कि लेबनान में जंग कभी भी छिड़ सकती है। लेबनान से जुड़ी एक और खबर है, सियासत से जुड़ी है। लेबनान के एक आला ऑफिशियल ने यह बताया है कि जुमेरात को वाशिंगटन में इसराइल के साथ होने वाली मीटिंग में लेबनान सीज फायर को 1 महीने और बढ़ाने की दरख्वास्त करेगा। नाम न छापने की शर्त पर अफसर ने बताया कि लेबनान इस दौरान इसराइली बमबारी और उन इलाकों में तबाही को पूरी तरह रोकने की मांग करेगा जहां इसराइली फ़ौज मौजूद है। लेबनान चाहता है कि सीज फायर पर सख्ती से अमल करने के लिए एक पक्का कमिटमेंट किया जाए। दोस्तों, इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की जो है नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि इसी से तय होगा कि सरहद पर अमन कायम रहेगा या फिर हालात दोबारा बिगड़ जाएंगे। अब ईरान की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले ईरान की एक बड़ी धमकी सुन लीजिए। कहा है कि दोबारा जंग शुरू हुई तो अमरीकी ठिकानों पर पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार हमले होंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के एक एनालिसिस के मुताबिक ईरान ने साफ वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल के साथ दोबारा जंग शुरू हुई तो वो पूरे इलाके में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमले करेगा और ईरान इस बार कुछ नए हथियारों का इस्तेमाल करेगा। 22 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ दोबारा एग्रेशन दिखाया गया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमरीकी इंटरेस्ट और उनके फौजी ठिकाने ईरान के टारगेट पर होंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे इलाके में टेंशन अपने उरूज पर है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब और भी ज़्यादा ताकत के साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की इस धमकी के बाद अमरीकी और ज़ायनी खेमे में हलचल देखी जा रही है। तैयारियां उधर भी हैं। ईरान की एक और बड़ी धमकी सुनिए। होर्मुज में समंदर के अंदर बिछा केबल अब निशाने पर है, यानी अरब मुल्कों में इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है और बैंकिंग, एयरलाइंस और सर्विलांस से लेकर तमाम शोबों में कोहराम मच सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट थम सकता है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की करीबी माने जाने वाली न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने एक बार फिर गल्फ़ के अरब मुल्कों को बड़ी वार्निंग दी है। तस्नीम ने इशारा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के समंदर के नीचे से गुजरने वाली डेटा केबल बेहद नाजुक मोड़ पर है और उन्हें कभी भी काटा जा सकता है। इस रिपोर्ट में, बल्कि ये रिपोर्ट तो पूरी दुनिया में छा गई है क्योंकि सबका सिर्फ मिडिल ईस्ट अंधेरे में नहीं होगा, बहुत से आगे मुल्क भी अंधेरे में हो जाएंगे इंटरनेट ब्लैकआउट में। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर एक साथ कई अहम केबलों को नुकसान पहुंचा, चाहे वो किसी हादसे में पहुंचे या जानबूझकर की गई किसी कार्रवाई में पहुंचे, तो इससे पूरे पर्शियन गल्फ में इंटरनेट और डेटा का बड़ा ब्लैकआउट हो सकता है। गौरतलब है कि इस रास्ते से कई बड़े केबल गुजरते हैं। इससे पहले रेड सी में भी केबल कटने से इलाके में हंगामा मच गया था जब यमन जंग में था, उस वक्त गजा के लिए। अब ईरान की इस ताज़ा धमकी ने अरब मुल्कों और ग्लोबल टेक कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि होर्मुज़ के इस अहम रास्ते पर ईरान की पकड़ काफ़ी मजबूत है। मैं 22 अप्रैल को ये बात कह रहा हूँ, ये केबल कब कट जाए पता नहीं। सऊदी अरब में अपने अड्डे पर तबाही झेल चुका अमेरिका अब यूक्रेन से ईरान के खिलाफ मदद ले रहा है। यूक्रेन को मदद देने वाले अब यूक्रेन से मदद ले रहे हैं।
सऊदी में ईरानी ड्रोन्स का खौफ बरकरार है और अब अमेरिका यूक्रेनी टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है। 40 दिन तक चली जंग के दौरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो अमेरिका की फौज का अड्डा है, वहाँ ईरानी ड्रोन्स के मुसलसल हमलों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। आप सबको याद होगा, इन हमलों में अमेरिकी जंगी जहाज़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने बचाव करने के लिए यूक्रेन की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका अगली जंग में खुद को ईरानी हमलों से बचाने पर काम कर रहा है। यानी अगली जंग तय है, तभी तो तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी टीमें अब अमरीकी फौजियों को स्काई मैप नाम के एक एडवांस सिस्टम की ट्रेनिंग दे रही हैं। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन्स का फौरन पता लगा लेता है, बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करके तबाह करने में भी मदद करता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते ड्रोन खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का यूक्रेन की इस जंग में आजमाई हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव माना जा रहा है। बदलाव के साथ आसार तो वही हैं। बचने के रास्ते तभी खोजे जाते हैं जब हमला करने का प्लान बन रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है सरहद पर। उसने टेररिस्ट को, एक पूरे गैंग को ढेर कर दिया है। रास्क बॉर्डर पर दहशतगर्द टीम का सफाया किया है। कई दहशतगर्द ढेर हुए हैं। ईरानी फौज ने जैश अल जुल्म नाम की दहशतगर्द तंजीम के एक ऑपरेशनल ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये मिलिटेंट्स पाकिस्तान की सरहद से घुसपैठ करके ईरान के रास्क इलाके में दाखिल हुए थे। ये 22 अप्रैल को आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में लिखा है कि जवाबी कार्रवाई में फौजी जवानों ने कई दहशतगर्दों को मौके पर ही ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये ग्रुप किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से ईरान की सरहद पार कर ईरान की ज़मीन पर पहुंचा था, लेकिन ईरानी जाबाजों ने, ईरान के फौजियों ने वक्त रहते उनकी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया। हाँ, सबसे बड़ी खबर तो रही गई, सीज फायर पर ईरान की चुप्पी बरकरार है। अब तक उसने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। मीडिया की तमाम खबरों के बावजूद ईरान ने सीज फायर को आगे बढ़ाने के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर कोई भी ऑफिशियल, कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की गुजारिश पर, कहते हैं ट्रंप कि मैंने पाकिस्तान की गुजारिश पर सीज फायर को हमेशा के लिए आगे बढ़ा दिया है। कोई जो है समय सीमा, कोई लिमिट नहीं है कब तक बढ़ गया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक बातचीत में शामिल होने पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने इसके पीछे अमेरिका की दोहरी चाल और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं सीज हटाओ, ब्लॉकेड हटाओ, बातचीत करेंगे। ईरान का मानना है कि पाबंदियों के बीच बातचीत का सही माहौल नहीं है। दोस्तों, जब तक ईरान की फॉर्मल मंजूरी नहीं आती, अमन की कोशिशें अधर में लटकी हैं। क्या सितम है कि सुपर पावर के सदर को ईरान की हामी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, या इस इंतज़ार में वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, पता नहीं। जिन लोगों को मेरी आवाज़ कम आती हो तो याद रखिए, मेरी आवाज़ भारी है, मैं बहुत आराम से बोलता हूँ। मैंने आपको आज भी बताया था, 2 जर्नलिस्ट का मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल। विनोद दुआ साहब मरहूम और दीपक चौरसिया में बहुत फ़र्क था। मैं दीपक चौरसिया नहीं हूँ, मैं विनोद दुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से बात करता हूँ। तो आपको वैसे नहीं सुनाई देगी जो आपके कान फाड़ दे। आगे बढ़ते हैं। ईरान का एक बड़ा दांव देखिए। अमेरिका को वार्निंग दे रहा है ईरान, लेकिन कतर के तेल कुओं पर भी उसकी नज़र है। ईरानी हुकूमत की तरफ से एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। एक तरफ ईरान का कहना है कि वो सिर्फ गल्फ में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाएगा, लेकिन सामने आई फुटेज में एक ईरानी मिसाइल पर कतर के रास ऑयल फील्ड की तस्वीर लगी हुई है। जानकारों के मुताबिक ये साफ तौर पर एक इशारा है कि अगर जंग तेज हुई तो गल्फ के अरब मुल्कों के तेल के कुएं भी ईरान की जद में आ सकते हैं। इस फुटेज के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई है, क्योंकि कतर जैसे मुल्क अब सीधे तौर पर निशाने पर नजर आ रहे हैं। कतर न्यूट्रल मुल्क है। कतर ओमान के बाद ईरान का बेहद करीबी भी माना जाता है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इस ताज़ा डेवलपमेंट ने मिडिल ईस्ट की इकॉनमी और सप्लाई चेन के लिए बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है, जिससे साफ है कि ईरान ने अपनी तैयारी सिर्फ अमरीकी अड्डों तक महदूद नहीं रखी है। बढ़ते आगे।
गल्फ ऑफ ओमान में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी फौज के जरिए पकड़े गए जहाज को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच ठन गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामों के एक दिन बाद चाइना ने फिर से साफ इनकार किया है कि उस जहाज में बीजिंग की तरफ से ईरान के लिए कोई गिफ्ट था। ये गिफ्ट नाम का लफ्ज़ जो है वो ट्रंप ने यूज़ किया था कल रात। ये मामला तब और गरमा गया जब यूएन में अमेरिका की एक्स एम्बेसडर रही निक्की हेली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जहाज़ चीन से ईरान जा रहा था और इसका कनेक्शन मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल की खेप से था। यानी चाइना ने मिसाइलों के कंपोनेंट्स और कुछ एक्सप्लोजिव्स वगैरह ईरान को भेजे थे और वो अमेरिका ने पकड़ लिए। चाइना ने इन तमाम दावों को झूठा करार दिया है। फिलहाल अमेरिका ने उस जहाज़ को अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी और मुर्ज में बोली जाती है। जहाज़ अमेरिका के कब्जे में, जांच कर लो भाई अंदर क्या सामान है, कि अंडरवियर है या अंडरटेकर है ना, पता चल जाएगा बारूद आया था नहीं आया था। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा दिया है। यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी पर तगड़े हमले किए गए हैं। 1000 से ज़्यादा फौजी मार दिए रूस ने। पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन के एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेनी आर्मी को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस इसे जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। रूस की बैटल ग्रुप नॉर्थ ने अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों में कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के 200 से ज़्यादा फौजी ढेर कर दिए हैं और उनकी आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स को भी तबाह कर दिया है। रूस का एक बड़ा दावा यह है कि पूरी ईस्टर्न फ्रंट और दीगर मोर्चों पर हुई झड़पों में पिछले एक दिन के अंदर 24 घंटे में यूक्रेन ने अपने लगभग 1120 फौजी खो दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की सप्लाई लाइन और बंदरगाहों को मुसलसल निशाना बनाता रहेगा ताकि दुश्मन की कमर तोड़ी जा सके। अमेरिका के जॉर्जिया में खौफनाक सूखा पड़ गया है। आग की लपटों ने वहाँ भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद 12 इलाके खाली कराए गए हैं। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में आए ज़बरदस्त सूखे ने तबाही मचा दी है। साउथ जॉर्जिया के जंगलों में लगी आग यानी वाइल्ड फायर्स बेकाबू हो गई हैं, जिसने अब तक 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को जलाकर राख कर दिया है। 22 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक इन हालात की संगीनियत को देखते हुए अमरीकी हुकूमत ने 12 इलाकों के बाशिंदों को फ़ौरन घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल क्लिंच काउंटी का है, जहां पाइनलैंड रोड की आग तेज़ी से फैल रही है। जानकारी के मुताबिक सूखे और तेज़ हवाओं की वजह से ये आग इतनी डेंजरस हो गई है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा सूखा है, जिसने रिहायशी इलाकों और जंगलों को बारूद का ढेर बना दिया है। फिलहाल हज़ारों लोग शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं। वो जानते हैं कि उनके घर कभी भी जल सकते हैं, जल रहे हैं। एक बड़ी खबर सुनिए। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ जंग और टेंशन की खबरें छाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जो पूरे रीजन की तिजारत और कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकता है। साहले अल जासेर, जो सऊदी अरेबिया के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब को तुर्की से जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसकी जॉइंट स्टडी इस साल के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है। कमाल है, इसी सल्तनत उस्मानिया तुर्की को खदेड़ा गया था, इसी सऊदी किंगडम ने खदेड़ा था सऊदी अरब से। अब रेल लाइन जोड़ना है। ये रेल लाइन जॉर्डन और सीरिया के रास्ते गुजरेगी, यानी 4 अहम मुल्क एक ही ज़मीन के रास्ते से जुड़ जाएंगे और इससे सामान की आवाजाही पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अल जासेर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर साबित हो सकता है, जो मुल्कों के बीच तालमेल बढ़ाएगा और एक स्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा करेगा। ऐसे वक्त में जब रीजन में हालात नाजुक हैं, 22 अप्रैल की ये खबर ख़ास बन जाती है। ये प्रोजेक्ट ये भी दिखाता है कि कई मुल्क जंग के साए के बीच भी अपनी इकॉनमी और तिजारत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या ये प्लान ज़मीन पर उतरेगा या मौजूदा हालात इसकी रफ्तार को रोक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।